Good morning, students. We were discussing about our chapter neural control and coordination, and last time we were discussing about human brain. So we have completed all the parts of human brain. Today we are going to discuss about one more system that is present in brain, and that is limbic system. क्या है ये लिम्बिक सिस्टम? ये लिम्बिक सिस्टम बेसिकली बनता है सेरिब्रम और डायनसेफ्लोन के कुछ कंपोनेंट से. So some of the components of cerebrum and diencephalon, they are forming this limbic system. So it is formed from the components of cerebrum and diencephalon. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस लिम्बिक सिस्टम के? वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कंपोनेंट्स. सो मेजर कंपोनेंट्स जो लिम्बिक सिस्टम के हैं, द मेजर कंपोनेंट इज हिपोकैम्पस. And in this diagram where I can represent this hippocampus, see it is easy to understand. ये जो लाइन पोर्शन है जिसको मैंने स्मॉल लाइन से डिनोट किया है, दिस पार्ट इज कॉर्पस कैलोसम. यू रिमेंबर कॉर्पस कैलोसम, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. दिस इज द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम ने हमने देखा था कि एक एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है, दैट इज द फोर्निक्स. सो दिस इज द फोर्निक्स. ये कॉर्पस कैलोसम जहां टेम्पोरल लोब के साथ अटैच्ड होता है, दैट पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब इज हैविंग दिस हिपोकैम्पस. So this is the hippocampus which is giving a seahorse like shape. So this is here where the hippocampus is present, a seahorse like shape is there. फंक्शन क्या करता है ये हिप्पोकैम्पस? ये हमारी मेमोरी के साथ डील करता है. इट इज गोइंग टू फॉर्म न्यू मेमोरीज. प्लस इस हिपोकैम्पस का फंक्शन है हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना. सो दिस हिपोकैम्पस इज कन्वर्टिंग आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. This is the function of hippocampus, that is a main part of limbic system. And where this hippocampus is lying? It is lying in the temporal lobe. We have already talked about all the lobes. So this is lying in the temporal lobe. Another important component of this limbic system is amygdala. And where it is located? This part, this bulge round structure is the amygdala. So it is also present in the temporal lobe. And what this amygdala is doing? It is responsible for our emotions. So amygdala is also found in the temporal lobe. And main function of this amygdala is to deal with our emotions. Emotions means it can be simply fear is there, anger is there, love is there, friendship is there. So fear, anger, fight, love, friendship. This amygdala is going to deal with all such emotions. That means the emotions which we are having in different situations, that is controlled by this amygdala. साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जब इस एमिगडेले को रिमूव कर दिया जाता है, देन द पर्सन और द इंडिविजुअल इज नॉट गोइंग टू शो एनी टाइप ऑफ इमोशन. So this has confirmed that yes, amygdala is responsible for the controlling of our emotions. These are the two main components of limbic system. इन दो मेन कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम का कंपोनेंट बनते हैं. These are the septal nuclei.
These are also playing some of the role. Septal nuclei, ये सेप्टल न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज द सेप्टल एरिया दैट इज प्रेजेंट, और इस सेप्टल एरिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, दैट आर द सेप्टल न्यूक्लियाई, एंड दीज सेप्टल न्यूक्लियाई आर ऑल्सो मेकिंग द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. Another one is basal ganglia. We have already discussed about basal ganglia. So these septal nuclei, basal ganglia, they are gray matter, and these gray matter, they are basically having the aggregation of cell bodies. So aggregation of cell bodies are there. Making the scattered gray matter, and they are also the parts of limbic system. So what this limbic system is doing? This limbic system is dealing with our memory, it is also controlling our emotions, it is also controlling the sexual behavior of an individual, plus controlling our food habits. So these are the different functions of limbic system. The next topic which we are going to discuss is the ventricles that are present in the brain. Ventricles of the brain. Ventricles of the brain से क्या समझते हैं हम? ब्रेन के वेंट्रिकल्स वो ओपन एरियाज हैं, स्पेसेस हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट हैं, और इन स्पेसेस से फ्लूइड फ्लो करता है. सो वेंट्रिकल्स क्या हैं? दीज आर द फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, फ्लूइड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट CSF इज गोइंग टू फ्लो. तो ये वो ओपन एरियाज हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट हैं और जिनके थ्रू CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फ्लो करता है. इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन ब्रेन, सो देर आर 4 वेंट्रिकल्स. ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं? 4 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन. वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन. सो वी आर हैविंग 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, then third ventricle is there, and fourth ventricle. Total 4 are there because lateral ventricles are 2. Now let me represent all these ventricles with the help of a diagram. Where these lateral ventricles are present, these lateral ventricles are present in cerebrum. So हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो एक लेटरल वेंट्रिकल एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है और दूसरा लेटरल वेंट्रिकल दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है. सो दिस इज हाउ वी कैन शो this is cerebrum. So this is one cerebral hemisphere and second cerebral hemisphere. So this is cerebrum, and these are the 2 lateral ventricles, one lateral ventricle and the second lateral ventricle. So the 2 lateral ventricles, the first and second ventricle, they are present in the cerebrum. Now these ventricles, they are coming in contact with the third ventricle. This third ventricle is going to rise, it is lying in the thalamus region. So this first and second ventricle is in contact with the थर्ड वेंट्रिकल. ये पहला और दूसरा वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है विद द ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो. दैट इज फोरामेन ऑफ
Monero. So the lateral ventricles are in contact with the third ventricle with the help of foramen of Monro. Now there comes our डाइनसेफ्लोन. जब हम सेरिब्रम से नीचे की तरफ आएंगे देन दिस इज द डाइनसेफ्लोन, और जो थैलेमस रीजन है वहां पर प्रेजेंट है हमारा थर्ड वेंट्रिकल. दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायोसिल. नाउ दिस थर्ड वेंट्रिकल, अगेन देर इज अ नैरो ओपनिंग, and this third ventricle is coming in contact with the fourth one, और फोर्थ वन कहाँ प्रेजेंट है? इन द रीजन वेयर पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा इज प्रेजेंट. सो ये जो पोर्शन है जिससे थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के कॉन्टेक्ट में आता है, दिस इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, or you can say aqueduct of Sylvius or Iter. So this third ventricle is connected with the fourth ventricle with the help of this cerebral aqueduct. ये हमारा fourth ventricle है, this is the fourth ventricle, और ये फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? इन द रीजन वेयर पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा इज lying. This is the region of pons veroli and this lower one is medulla oblongata. So ये pons veroli है and this is medulla oblongata. ये जो pons veroli है we know ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है? It is attached with the spinal cord. So this is how spinal cord is moving. This is the portion of spinal cord. और ये central canal है. So from here the CSF will be in continuity with the spinal cord. So I am repeating it again कि brain में 4 ventricles present हैं जो open fluid filled spaces हैं जिनके बीच से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है. जो हमारे 2 वेंट्रिकल्स हैं, अपर 2 वेंट्रिकल्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट हैं? सेरिब्रम में प्रेजेंट है. इन वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट. जो पहले 2 वेंट्रिकल हैं वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ कॉन्टेक्ट में है, किसकी हेल्प से? ओपनिंग, दैट इज फोरामेन ऑफ मोनरो. फिर आता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल जो डाइनसेफ्लोन में प्रेजेंट है, जो थैलेमस के थ्रू क्रॉस करता है, और ये थर्ड वेंट्रिकल हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के साथ किस ओपनिंग से कनेक्टेड है? सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसको हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर. अब हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल है दैट इज लाइंग इन द पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा रीजन, एंड दिस फोर्थ वेंट्रिकल इज इन कंटिन्यूटी विद द स्पाइनल कॉर्ड, और इस तरीके से CSF इनके थ्रू फ्लो करता है. सो दीज आर द वेंट्रिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन. नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इन वेंट्रिकल्स के थ्रू फ्लो करता है. We are saying it as CSF. ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सिक्रीट करते हैं? वी टॉक्ड अबाउट कोरोइड प्लक्सेस. हमने कोरोइड प्लक्सेस की बात की थी जब हम ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम पढ़ रहे थे. एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पोर्शन है वो फोल्डेड होता है, जिसको हम एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेस बोलते हैं. मेडुला ऑब्लिंगेटा का भी पोस्टीरियर रीजन फोल्डेड होता है, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेस. सो दोनों एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेस और पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेस इन्वॉल्व होते हैं CSF के सिक्रीशन में. सो दिस CSF इज बीइंग सिक्रीटेड बाय एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेस and posterior
कोरोइड प्लक्सिस। CSF कहाँ फ्लो करता है? अभी हमने देखा दिस CSF इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज फ्लोइंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी CSF प्रेजेंट है, फ्लो करता है। देन it is also present in the subarachnoid space. We have seen that pyometer और arachnoid के बीच में जो space present होता है जिसको हम subarachnoid space बोलते हैं, उस subarachnoid space से भी क्या flow करता है? CSF flow करता है. So these are the regions of the brain where this CSF is flowing. Now the main thing is कि ये CSF फ्लो करने का सिग्निफिकेंस क्या है, वाई दिस CSF इज सो इम्पोर्टेंट, और वी कैन सिंपली से कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय दिस CSF. सो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस CSF का क्या है? इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी ऑफ द मैकेनिकल इंजरी. सो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और किसी भी मैकेनिकल इंजरी को हमारे ब्रेन तक रीच नहीं करने देता है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. दूसरा फंक्शन क्या है इस CSF का? इट इज प्रोवाइडिंग बायंसी टू द ब्रेन. अगर हम ऑन एन एवरेज साइज लेके देखते हैं तो आवर ब्रेन इज हैविंग almost weight of 1.4 kg. So because of the buoyancy that is provided by the CSF, the weight will be reduced. So this is going to apply less pressure. So that's why it is important. So we are not having or we are not feeling that weight of our brain because this CSF is responsible for providing buoyancy and that decreases the load or pressure. Another important function of this CSF it is acting as a medium of excretion. ब्रेन में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, so that waste material is going to come in this CSF and CSF will remove this or exchange this waste material. So ब्रेन से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम कौन करता है? CSF करता है. That is the another function of CSF. इसके अलावा इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? इट इज गोइंग टू सर्कुलेट हॉर्मोन्स. इस CSF में बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. सो आवर एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द ब्रेन. और कनेक्शन किसकी हेल्प से होता है? द कनेक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ CSF. So these are the different functions that are provided by the CSF. That's why CSF is so important. So that's all about the brain. We are talking about central nervous system और central nervous system में we have talked about brain. हमारे central nervous system का जो second part है, the important part, that is spinal cord. So we are going to talk about spinal cord, that is the second part of our central nervous system. Then after this we will talk about the peripheral nervous system. तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं then we have discussed something about spinal cord also. स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड और कनेक्शन किसकी हेल्प से है? विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा. So brain, the hind brain is leading to pons varoli, then medulla oblongata और medulla oblongata से डायरेक्टली नीचे क्या स्टार्ट होती है? स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है और ये स्पाइनल कोड हमारी बैक में रन करती है. दिस स्पाइनल कोड इट इज मूविंग इनटू अ कैनाल. जब हमने स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था तब हमने देखा था कि वर्टिब्रल कैनाल बनती है जिसको हम न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं. और न्यूरल कैनाल जितनी भी वर्टिब्रल डिस्क है दे आर हैविंग अ स्मॉल ओपनिंग
a central opening is there that is making a neural canal, और इस न्यूरल कैनाल के थ्रू रन करती है ये स्पाइनल कोड. नाउ दिस स्पाइनल कोड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. जैसे हम ब्रेन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स इस स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करते हैं. द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड इज वर्टिब्रल कॉलम. हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में और पहले भी बात कर चुके हैं. दैट इज वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वर्टिब्रे, और ये वर्टिब्रे बोनी वर्टिब्रे हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इनके बीच से रन करती है स्पाइनल कोड. सो दैट इज द हार्ड बोनी स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखता है. दूसरा स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है दैट इज मेनिंजेस. मेनिंजेस हमने ब्रेन में भी पढ़े थे एग्जैक्टली सेम. 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कोड ऑल्सो जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. इंटीरियरली सबसे अंदर की तरफ वी आर गोइंग टू सी द पाया मैटर. अंदर की तरफ पाया मैटर प्रेजेंट है. फिर वेब लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज द अरेक्नोइड. और सबसे बाहर वाली जो प्रेजेंट है दैट इज द ड्यूरा मैटर. So just like brain, it is also having 3 meninges that are involved in protection. Interiorly pia mater is there, middle में arachnoid present है और बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर प्रेजेंट है. इनके बीच के स्पेसेस एग्जैक्टली वैसे ही हैं. पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच का स्पेस है सब अरेक्नोइड स्पेस, जहाँ से CSF फ्लो करता है. Here also CSF is flowing. This is the subdural space. यहाँ पर ये हमारा स्पाइनल कोड का अंदर की तरफ है और यहाँ बाहर बोन्स प्रेजेंट हैं. वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट. एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रेजेंट होता है स्पाइनल कोड में जो कि ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है. दैट स्पेस इज बिटवीन दिस आउटर मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर एंड द बोन्स, एंड दिस स्पेस इज epidural space. So this epidural space is lying outside the dura mater. और ये epidural space किससे बना है? It is having a deposition of adipose tissue. So adipose tissues are fibrous adipose tissues are present in this epidural space and it is absent in brain and only present in spinal cord. Let's talk something more about the spinal cord and lastly we will discuss about the transverse section of spinal cord. So this spinal cord is arising from first cervical vertebrae, और हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या है? एटलस. एंड इट इज मूविंग टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे. सो कहाँ से कहाँ तक मूव करती है? C1 से L1 तक मूव करती है हमारी स्पाइनल कोड. अगर यहाँ तक हम इसकी लेंथ देखते हैं सो इन अडल्ट इट इज़ अराउंड 42 to 45 सेंटीमीटर. दैट इज़ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड. सो दिस स्पाइनल कोड इज मूविंग फ्रॉम फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे. लेकिन हर जगह इसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता है. some parts, in some of the parts it is going to show enlargement. दो enlargements देखने को मिलती हैं. First enlargement is visible in the cervical region. पहली enlargement cervical region में देखने को मिलती है and the second enlargement is present in the lumbar region. So here the diameter is going to increase. यहाँ पर diameter increase होता है and rest of the portion the diameter is less. So it is not showing a uniform diameter.
uniform diameter, two enlargements are there, one is cervical enlargement जो हमें सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलेगी, एंड सेकेंड इज लंबर enlargement. जो सर्वाइकल enlargement है, दिस सर्वाइकल enlargement is present in C4 to T1, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे टू फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे. यहाँ तक हमें सर्वाइकल एनलार्जमेंट देखने को मिलती है. दिस इज द सर्वाइकल एनलार्जमेंट. अब जो दूसरी लंबर एनलार्जमेंट है वो कहाँ मिलनी चाहिए? दैट इज गोइंग टू बी विजिबल इन द लंबर रीजन, लेकिन वो लंबर रीजन में नहीं मिलती है. दैट इज फाउंड इन द थोरेसिक वर्टिब्रेज. वाई? क्योंकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है. इट ग्रोज मोर फास्टर एज कंपेयर टू स्पाइनल कॉर्ड. वर्टिब्रल कॉलम के कंपैरिजन में स्पाइनल कॉर्ड बहुत धीरे स्लो ग्रो करती है. इसलिए ये एनलार्जमेंट जो हमारी लंबर एनलार्जमेंट है, दिस इज विजिबल इन द T9 टू T12 रीजन. जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, लास्ट की जो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, वहाँ पर हमें लंबर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है. सो दिस is going to be the end, this will be the upper, the atlas is the starting point of the spinal cord, और जो फर्स्ट और सेकेंड लंबर के वर्टिब्रे का बीच का पोर्शन है, वहाँ पर आकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड फिनिश हो जाती है. इट इज़ गोइंग टू स्टॉप. तो दिस स्वेलिंग इज गोइंग टू मेक अ कोन लाइक स्ट्रक्चर. जहाँ पर ये एंड होती है वहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस. कहाँ बनता है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर? बिटवीन द first and second lumbar vertebrae. So the spinal cord is going to end at this first and second lumbar vertebrae, and the cone like structure after ending that is formed is the conus medullaris. अब इस conus medullaris से एक fine connective filament extend करता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करके रखता है, एंड दिस फाइन कनेक्टिव फिलामेंट इज नोन एज फाइलम टर्मिनेल. दिस इज फाइलम टर्मिनेल. So what phylum terminale is? It is a fine connective filament that is arising from the end of this conus medullaris, and it is attached, going to attached with the vertebral column. अब हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स अराइज होती हैं, पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं. जब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं they are going to arise from this one single point. So we are going to see these nerves like this way. So lots of nerves are arising from here, और इस पोर्शन से इतनी सारी नर्व्स अराइज होने की वजह से ये कैसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है? इट इज़ गोइंग टू अपीयर लाइक अ हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ की तरह. अब कौन इज देयर और वहाँ से बहुत सारे हेयर्स अराइज कर रहे हैं. एग्जैक्टली हेयर यहाँ पर एंड हो जाता है और यहाँ से बहुत सारी नर्व्स अराइज होती हैं. सो इट इज़ गिविंग अ हॉर्स टेल स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना. दिस इज नोन एज कोडा इक्विना. So this is how our spinal cord is present. We will see how the different spinal nerves are arising in our peripheral nervous system. अभी सिर्फ हमें क्या याद रखना है? स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे से फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे तक मूव करती है. यहाँ पर जाकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में एंड होती है, दैट इज कोनस मेडुलरिस. इस कोनस मेडुलरिस से एक फाइन कनेक्टिव फिलामेंट अराइज होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच रखता है, दैट इज फाइलम टर्मिनेल. एंड यहाँ से इस पॉइंट से कोनल मेडुलरिस के एंड पॉइंट से बहुत सारी नर्व्स एक साथ अराइज होती हैं जो एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर देती है, एंड दैट इज नोन एज कोडा इक्विना. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी पढ़ने के लिए वी नीड टू कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू
see how this transverse section of spinal cord is visible. So I am drawing the transverse section of spinal cord. I'll explain the whole structure in this diagram only. This is a transverse section of spinal cord, and if you are seeing this transverse section of spinal cord, तो बीच में दो फिशर प्रेजेंट हैं और ये फिशर इसे लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. So it is divided into left and right part. This is the dorsal part. ये हमारा dorsal side है और you can say the posterior part, posterior one, and this is the ventral part or you can say anterior side. तो दोनों ही साइड पे दो फिशर प्रेजेंट है. अगर हम डोर्सल साइड पे देखें तो डोर्सल साइड का जो फिशर है बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, लेकिन जो वेंट्रल साइड का फिशर है दैट इज डीप, और ये दोनों फिशर्स इन्हें लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करते हैं. सो दिस इज द डोर्सल फिशर एंड दिस इज द वेंट्रल फिशर. दो फिशर प्रेजेंट है. दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ अनदर थिंग व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज, जब हमने ब्रेन की बात की थी, सो इन ब्रेन वी नो दैट सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, इन सब में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है. ग्रे मैटर कौन बनाता है? ग्रे मैटर एग्रीगेशन ऑफ सेल न्यूक्लियाई बनाते हैं, मीन सेल बॉडीज एग्रीगेट करके ग्रे मैटर बनाती हैं. सो उस पोर्शन में सारी सेल बॉडीज एग्रीगेटेड होंगी. वाइट फाइबर्स और वाइट मैटर कौन बनाता है? जो हमारे माइलिनेटेड एक्सोन्स है, एक्सोन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वो हमारे वाइट मैटर बनाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा है. पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर हैविंग ग्रे मैटर on the inner side and white matter on the outer side. This is what you have to remember, that brain के फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के पार्ट में ग्रे मैटर बाहर प्रेजेंट है. आर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज हैविंग ग्रे मैटर ऑन द आउटसाइड और वाइट मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट है. स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट है और वाइट मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट है. जब यहाँ पर हम ग्रे मैटर की अरेंजमेंट देखते हैं, सो दिस इज गिविंग अ बटरफ्लाई लाइक अरेंजमेंट. इस तरीके से ग्रे मैटर अरेंज्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड में. दिस रीजन, द सेंट्रल रीजन, दिस इज द ग्रे मैटर. ये सारा क्या है? ग्रे मैटर है. और बाहर जो प्रेजेंट है ओवर हियर, दिस पोर्शन, this side, this one and this one. So this is our white matter. ये क्या है? white matter है. So white matter is present on the outer side and gray matter is present on the inner side. और इसके बीच से यहाँ से रन करती है सेंट्रल कैनाल. इस सेंट्रल कैनाल में बहुत सारी सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट हैं. दिस इज हाउ सीलिएटेड कॉलमनार, इनके सरफेस पे क्या है? सीलिया प्रेजेंट है. सो सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स आर प्रेजेंट जो सीएसएफ की मूवमेंट में हेल्प करती है. आई एम राइटिंग ओवर हेयर, दीज आर लाइंड विद सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स. दे आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ CSF. वो सेंटर से मूव करती है. सो यहाँ तक क्लियर है. दो फिशर्स प्रेजेंट है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर प्रेजेंट है और बाहर की तरफ वाइट मैटर प्रेजेंट है. तो जब ग्रे मैटर इस तरीके से मूव करता है तो यहाँ पर दो होर्न बनते हैं. दो होर्न डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है और दो होर्न कहाँ हैं?
वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है. वी आर कॉलिंग देम एज डोर्सल होर्न. These are the horn like structures and this is the ventral horn. और इस डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न से रन करते हैं नर्व फाइबर्स. सो नर्व फाइबर्स आर कमिंग एंड लिविंग फ्रॉम दीज हॉर्न्स. अगर हम डोर्सल साइड की बात करते हैं, देन फ्रॉम दिस डोर्सल साइड सेंसरी फाइबर्स आर रनिंग. डोर्सल साइड पे कैसे फाइबर्स हैं? सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट हैं. ये सेंसरी फाइबर्स क्या करेंगे? सेंस ऑर्गन से मैसेज कहाँ लेके आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, देन इट इज गोइंग टू ब्रेन. सो दिस इज कमिंग, दिस इज ब्रिंगिंग द नर्व इम्पल्सेस. और वेंट्रल हॉर्न से जो नर्व फाइबर्स मूव करते हैं वो कैसे हैं? दीज आर मोटर नर्व फाइबर्स. मीन्स ये मैसेज को लेके जाते हैं हमारी बॉडी की इफेक्टर ऑर्गन्स के पास, इफेक्टर मसल्स और यू कैन से ग्लैंड्स के पास. सो दिस इज हाउ ventral horns are having the motor fibers and dorsal horns are having the sensory fibers. Other than this, यहाँ पर तीन we are having because of the presence of white matter. हमारे पास funiculus present है. We are saying it as funiculus. These are lateral funiculus. One and second lateral funiculus, the dorsal funiculus that is formed because of the white matter, and this is the ventral funiculus. So this is how spinal cord is present. What you need to remember is the distribution of white matter and gray matter, the dorsal and ventral horn, the type of fibers that are present in the dorsal and ventral horn. और function क्या है हमारे spinal cord का? This spinal cord is giving message to the brain and it is taking the message from the brain. और हमारी body के जितने भी reflex actions हैं उनको कौन control करता है? Spinal cord. So this spinal cord is going to control all the reflex actions of our body. So that's all for today. Next time we are going to discuss the next topic of this chapter.